السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج کی ویڈیو کا ٹائٹل آپ نے دیکھ لیا ہے کہ ایک عیسائی لڑکے نے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے کویسچن کیا ہے کہ قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے کیوں لیا، اور دوسری جو کتابیں ہیں جو کہ تینوں آسمانی کتابیں ہیں ان کی حفاظت کا ذمہ اللہ پاک نے کیوں نہیں لیا۔ تو آپ یہ ویڈیو میں دیکھیے گا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے اس کا بہت ہی اچھے سے جو ہے اس کو جواب دیا ہے۔ تو ویڈیو کو مکمل دیکھیے، پھر ویڈیو کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ کہا جاتا ہے اکارڈنگ ٹو قرآن اور مسلم کہ 4 آسمانی کتابیں ہیں، مطلب ورڈ آف گاڈ، تورات، زبور، انجیل اور قرآن۔ لیکن قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے، تو باقی 3 کتابیں جو کہ آسمانی ہیں، ورڈ آف گاڈ ہیں، ان کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود کیوں نہیں لیا؟ اور اگر وہ تبدیل ہو گئی ہے تو اس میں ذمہ دار کون ہے؟ صاحب آدھا منٹ دو، تھینک یو۔ بالکل آدھا منٹ دوں گا، 2 منٹ بہت ہو جاتے، فری میں نے دیا آپ کو، آپ کی محبت میں۔ تھینک یو سر، میں آپ سے محبت کرتا ہوں، لو یو ٹو۔ بھائی صاحب کا سوال ایک دم اچھا تھا، ماشاء اللہ 4 جملے میں آدھے منٹ سے کم، یہ صحیح ہے۔ آدھا منٹ لو، 1 منٹ لو، 2 منٹ بہت ہو جاتا ہے، فری میں نے دیا۔ بھائی صاحب کا سوال ایک دم صاف ہے، ایک دم ستھرا ہے اور آسان اردو میں ہے کہ جب قرآن میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی 4 کتابیں ہیں، تورات، زبور، انجیل اور قرآن، تو اللہ تعالیٰ نے صرف قرآن کی حفاظت کیوں کی؟ باقی آسمانی کتاب، باقی جو اللہ کے کلام تھے اس کی حفاظت کیوں نہیں کی؟ بہت اچھا سوال، جس کا میں نے سوال مختصر سا دیا تھا، ڈیٹیل میں نے میری تقریر میں شاید آپ نے سنا نہیں ہوگا۔ اور بھائی صاحب صحیح کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں ذکر اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ رعد میں، سورہ نمبر 13 آیت نمبر 38 میں، وَلِكُلِّ أَجْرٍ کتاب، ہر دور میں ہم نے کتاب بھیجی، کتاب نازل کی۔ نام سے صرف 4 کا ذکر ہے، تورات، زبور، انجیل اور قرآن۔ تورات وہ وہی ہے، وہ کتاب ہے جو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پہ نازل کی۔ زبور وہ کتاب ہے، وہ وہی ہے جو اللہ نے داؤد علیہ السلام پہ نازل کی۔ انجیل وہ کتاب ہے، وہ وہی ہے جو اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل کی۔ اور قرآن مجید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کی۔ بھائی صاحب کا ایک دم اچھا سوال ہے کہ اللہ نے جب قرآن مجید میں کہا، اور میں نے ذکر کیا سورہ ہجر میں، سورہ نمبر 15 آیت نمبر 9 میں، کہ ہم نے قرآن نازل کی، ہم اس کی حفاظت کریں، تو اللہ تعالیٰ نے صرف قرآن کی حفاظت کیوں کی؟ باقی آسمانی کتاب، باقی کلام کی حفاظت کرنے کا ٹھیکہ کیوں نہیں؟ بہت اہم سوال، بہت اچھا سوال۔ اس کا جواب ہے کہ جتنے بھی پہلے کتابیں نازل کی گئی، جتنے بھی وہی قرآن مجید کے پہلے آئے، وہ صرف ایک وقت کے لیے تھی اور ایک گروہ کے لیے تھی۔ مثال کے طور پہ قرآن میں کہا گیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نبی تھے بنی اسرائیل کے لیے، صرف اسرائیل کے لیے تھے، ساری دنیا کے لیے نہیں تھے۔ بائبل میں کہا گیا ہے I have been sent only to the lordship of Israel۔ عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں ریڈ لیٹر بائبل میں، گاسپل میں، I have been sent only to the lordship of Israel، میں صرف بھیجا گیا ہوں جو بنی اسرائیل ہے، جو بھٹکے ہوئے۔ یعنی بائبل میں بھی کہا گیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بھیجے گئے تھے صرف بنی اسرائیل کے لیے۔ قرآن مجید میں بھی کہا گیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بھیجے گئے تھے صرف بنی اسرائیل کے لیے، وہ عربوں کے لیے نہیں بھیجے گئے تھے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے ہیں قرآن میں اور بائبل میں، عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، قرآن میں پہلے کہوں گا سورہ صف میں، سورہ نمبر 61 آیت نمبر 6 میں، For Jesus Christ says, there will be a messenger to come by the name of Ahmad۔ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے قرآن مجید میں ایک پیغمبر آئیں گے جو آپ کو کہیں گے، اس کا نام ہے احمد۔ اور کئی بار نیو ٹیسٹمنٹ میں لکھا ہے، گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 16 ورس نمبر 7 and Gospel of John chapter number 16 verse number 11 to 12, I have many things to say unto you, but ye cannot bear them now, for he when the Spirit of truth shall come,
he shall guide you to all truth. He shall not speak of himself, all that he shall speak. इसमें लिखा है कि मुझे आप ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं गॉस्पेल ऑफ जॉन में चैप्टर नंबर 16 आयत वर्स नंबर 11, 12, 13, 14 कि मुझे आपको बहुत सी चीज़ें कहना है लेकिन आप अभी नहीं समझ सकेंगे. वो ही व्हेन द स्पिरिट ऑफ ट्रुथ बिल्कुल जो हक करवाएगा वो आपको दिखाएगा, वो आपको समझाएगा. वो अपने आप नहीं कहेगा, जो कुछ वो सुनेगा वो कहेगा. वो मुझे ग्लोरीफाई करेगा, वो मेरी तारीफ करेंगे. ये जो गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 16 वर्स नंबर 11 से 14 है, ये ईसा अलैहिस्सलाम पेशेंट गोई कर रहे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और कह रहे कि मुझे आपको बहुत कुछ कहना है, आप अभी समझ नहीं पाएंगे. वो जब आएंगे हक के पैगंबर, वो आपको कहेंगे सारे सच्चाई और वो जो कुछ सुनेंगे अपने आप से कुछ नहीं कहेंगे, जो कुछ सुनेंगे वो कहेंगे और वो मेरी तारीफ करेंगे. आज की तारीख में इस्लाम एक वाहिद गैर ईसाई मज़हब है जिसमें फ़र्ज़ है हर मुसलमान के लिए क्या वो ईसा अलैहिस्सलाम में माने. आप कोई भी मजहबी किताब उठाओ. अच्छा, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर हम पुराना हदनामा इस्तिस्ना उसका 18वां बाब उसकी 18वीं आयत भी पढ़े तो वहाँ पर भी हमें मिलता है कि अल्लाह पाक ने जब मूसा अलैहिस्सलाम पर जो किताब नाज़िल की थी उसमें भी हमें देखने को मिलता है कि मैं उनके भाइयों में से एक नबी बर्पा करूँगा और उसके मुँह में अपना कलाम डालूँगा और वो वही कहेगा जो मैं उससे कहूँगा, बल्कि खुद से कुछ ना कहूँगा. तो अगर हम इस्तिस्ना की किताब पर भी गौर करें तो आप सल्लम की जो पेशन गई है वो हमें वहाँ पर भी देखने को मिलती है. वीडियो को स्टार्ट करते हैं और ये कंप्लीट होती है. गैर ईसाई कुरान एक वाहिद गैर ईसाई मजहबी किताब है जिसमें हर मुसलमान को मानना फ़र्ज है क्या वो ईसा अलैहिस्सलाम को पैगंबर माने. अगर कोई मुस्लिम ईसा अलैहिस्सलाम को पैगंबर नहीं मानता है तो वो मुस्लिम नहीं अपने आप को बोल सकता है. आप समझ रहे. तो ईसा अलैहिस्सलाम आए थे सिर्फ बनी इसराइल के लिए, मूसा अलैहिस्सलाम भी आए थे बनी इसराइल के लिए. तो जितने पैगंबर आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले आए वो सिर्फ अपने लोग के लिए आए और जो कलाम उनके लिए नाजिल किया गया था, जो अल्लाह ने कलाम नाजिल की वो सिर्फ उन लोगों के लिए था. लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्योंकि आखिरी पैगंबर थे, अल्लाह ताला फरमाते सूरह आज़ाब में सूरह नंबर 33 आयत नंबर 40 मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातिमुन नबीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा. कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप में से किसके वालिद नहीं लेकिन आखिरी नबी है और खातिमुन नबी है. व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा. और अल्लाह ताला सब चीज़ जानता है. क्योंकि कुरान में लिखा हुआ है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है. वो सिर्फ अरबों के लिए नहीं भेजे गए थे, वो सारी इंसानियत के लिए भेजे गए थे. अल्लाह ताला फरमाते सूरह अंबिया में सूरह नंबर 21 आयत नंबर 7 वमा अरसलनाका इल्ला रहमतुल आलमीन. सूरह अंबिया सूरह नंबर 21 आयत नंबर 107 वमा अरसलनाका इल्ला रहमतुल आलमीन कि हमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं भेजा लेकिन सारी रहमत सारे आलम के लिए, सारे इंसानियत के लिए, सारे कायनात के लिए. और क्योंकि पहले जितने भी वही आए तोरा ज़बूर इंजील सूफ इब्राहिम वो सिर्फ एक महदूद वक्त के लिए थे और सिर्फ एक ग्रोह के लिए थे. कुरान मजीद सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं भेजा गया था, सिर्फ अरबों के लिए नहीं भेजा गया था. कुरान मजीद में जिक्र आता है सूरह इब्राहिम में सूरह नंबर 14 आयत नंबर 1 अलिफ लाम रा. हमने कुरान भेजा ताकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसानियत को अंधेरे से रोशनी मिला. कुरान मजीद में जिक्र आता है सूरह इब्राहिम में सूरह नंबर 14 आयत नंबर 52 52 Here is the message from mankind. Let them know there is one God. Let them know. Let the men of understanding take heed. आप ये समझ लो सारे इंसानियत के लिए कुरान मजीद है और वो जान ले कि एक ये अल्लाह है. कुरान में लिखा है सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 185 रमदान was the month in which the Quran was revealed. रमदान वो महीना था जिसमें कुरान नाजिल हुआ.
सारी इंसानियत के लिए हिदायत और हक और बातिल के दरमियान फैसला करने के लिए। कुरान में जिक्र आता है सूरह ज़ुमर में, सूरह नंबर 39 आयत नंबर 41 कि कुरान मजीद अल्लाह ने नाजिल किए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ताकि वो इंसानियत को हिदायत दे, सिर्फ मुसलमान को नहीं, सिर्फ अरबों को नहीं। तो क्योंकि कुरान मजीद अल्लाह का आखिरी कलाम है, उसके बाद कोई और कलाम नहीं आएगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बाकी जितनी किताब आए उनको महफूज रखना सही नहीं समझा और लॉजिकल है। हम जब जाते हैं, हम जब पढ़ते हैं, हम जब तहकीक करते हैं साइंस में, तो साइंस के अंदर आप जब पढ़ाई करते हैं तो आप लेटेस्ट एडिशन की किताब पढ़ेंगे या पुरानी किताब? पुरानी किताब में हो सकता है गलतियाँ है, हो सकता है गलती नहीं है, हो सकता है इनकम्प्लीट है। आप कौन सी किताब पढ़ेंगे? लेटेस्ट एडिशन। तो कुरान मजीद अल्लाह सुब्हानहू व तआला का आखिरी कलाम है इंसानियत के लिए, और अल्लाह ताला ने इसके अंदर सारे इंसानियत के हल दिए। आप पूछेंगे अल्लाह ताला ने कुरान मजीद पहले क्यों नासिल की, पहले क्यों तौरा की, फिर ज़बूर की, फिर इंजील की, फिर कुरान? क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इंसानों की खालिक है, इंसानों को अच्छी तरीके से जानते हैं। कैसी मिसाल हुई, मेरा बेटा बोलता है अब्बा मुझे डॉक्टर बनने का है, आप मुझे नर्सरी फर्स्ट स्टैंडर्ड में क्यों डालते, डायरेक्टली मेडिकल कॉलेज में डालो। मैं बोलेगा बेटा पहला नर्सरी में जाओ, फिर प्री प्राइमरी में जाओ, फिर सेकेंडरी में जाओ, फिर कॉलेज में जाओ, फिर मेडिकल कॉलेज जाओ। डायरेक्ट आपको मेडिकल में कॉलेज में भेजेंगे, क्या समझेंगे आप? तो इसी तरीके से अल्लाह सुब्हानहू व तआला जानते हैं कि इंसान कब कुरान को समझ पाएगा। जब इंसान लाखों साल पहले ये गौर किया इस बात पे, या हज़ारों साल पहले अगर नाजिल करते वो कुरान समझ नहीं पाते। अल्लाह ताला जानते हैं कि 1400 साल पहले अभी वक्त आ गया कि इंसान कुरान को समझ पाएंगे। तो पहले जितने कलाम थे वो उतने लेवल के थे जितने लेवल इंसान समझ सकते थे। इसीलिए अल्लाह ने उसे महफूज रखने को ज़रूरत नहीं समझा, उसमें मिलावट आ गई। आप बाइबल देखेंगे, बाइबल में मिलावट है। इट कंटेन द वर्ड्स ऑफ गॉड, कुछ अल्लाह का कलाम होगा। अगर कुरान से मिलता है हमें कोई इतराज़ नहीं, कुछ पैगंबर का कलाम है, कुछ हिस्टोरियन का कलाम है, कुछ पोर्नोग्राफी है। पोर्नोग्राफी मतलब ऐसे अल्फाज है जो आप मुझे $1 मिलियन देंगे तो भी मैं स्टेज पे नहीं पढ़ पाऊंगा। बाइबल में ऐसे कहानी किस्से है कि कौन मुझे $1 मिलियन रुपीज़ नहीं, $1 मिलियन या 1 अरब रुपया मुझे देगा आज और कहेगा कि पब्लिक के सामने पढ़ो, मैं पढ़ ही नहीं सकूंगा। मिसाल के तौर पे एज़ेकिएल चैप्टर नंबर 24, आप मुझे 1 अरब रुपये देंगे तो भी नहीं पढ़ूंगा मैं, क्योंकि मेरे इस्लाम इजाज़त ही नहीं देता है ऐसे वाहियात अल्फाज पब्लिक के सामने बोलूँ। तो ये आपका जो प्रेजेंट बाइबल है मिक्सचर है, अल्लाह का कलाम भी है, कुछ पैगंबर का कलाम भी है, हिस्टोरियन की किताबें और पोर्नोग्राफी भी है। तो हमें पढ़ना चाहिए आखिरी किताब जो अल्लाह ने महफूज रखी है, वो है कुरान मजीद। इसमें कोई मिलावट नहीं। तो आपको पुरानी किताब से क्या दिलचस्पी है? आप जब पढ़ने जाएंगे साइंस में, मेडिकल कॉलेज में या इंजीनियरिंग में, आप बोलेंगे मैं पहला एडिशन पढ़ना चाहता हूँ, तहकीक के लिए पढ़ सकते, नो प्रॉब्लम। लेकिन अमल करने के लिए आप आखिरी एडिशन पढ़ेंगे बस। तो अमल करने के लिए कुरान मजीद काफ़ी है। अल्लाह ताला आपका वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता है। आखिरी एडिशन अल्लाह ताला ने इसको महफूज रखा है। आपको अगर तकाबुल अध्ययन का माहिर बनना है तो नो प्रॉब्लम। आम इंसानों को क्यों वक्त ज़ाया कर रहे हैं? आप समझ रहे? तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारा मालिक है, हाकिम, वो जानता है। आपको अगर तकाबुल अध्ययन का माहिर बनने का, मैं तालिब हूँ तकाबुल अध्ययन का, मैं पढ़ चुका हूँ, मैं क्यों बोलूँ बाकी मुसलमान को पढ़ूँ? तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला इंसानों के लिए आसानी चाहता है। साफ कह चुका है ये आखिरी कलाम में, इस पर अमल करो। और एक मज़हब जो अल्लाह ने हमेशा सिखाया
इन दीना इंदल्लाह इस्लाम, सूरह इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 19 कि सिर्फ एक ही दिन अल्लाह के नज़दीक सही है, वो इस्लाम। लेट जी तो दोस्तों, उम्मीद है आपने ये वीडियो पूरी देखी होगी और इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और जैसा कि आपने देखा कि डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने एक जो क्रिश्चियन भाई थे हमारे, उन्होंने क्वेश्चन किया था कि कुरान का ज़िम्मा जो है वो अल्लाह पाक ने क्यों लिया, दूसरी किताबों का ज़िम्मा क्यों नहीं लिया। और फिर डॉक्टर साहब ने इस चीज़ को भी क्लियर किया कि अल्लाह पाक ने कुरान जो है 1400 साल पहले उसके सही मुकर्रर वक्त पर नाज़िल किया। तो अगर वो उससे पहले नाज़िल करते तो हो सकता है कि उस दौर के जो लोग थे वो उसको समझ ना पाते। और आपको पता है कि जब इंसान बच्चा भी जो है वो जब छोटा होता है तो उसे किसी चीज़ की समझ नहीं होती। आहिस्ता आहिस्ता जब वो बढ़ता है तो उसको लाइफ के एक्सपेरिमेंट होते हैं, उसकी ज़िंदगी में नई नई चीज़ें उसको देखने को मिलती हैं, सीखने को मिलती हैं, फिर जाके वो एक प्रॉपर ज़िंदगी गुजारने के काबिल होता है। सेम लाइक इसी तरह अगर वक्त से पहले कुरान पाक नाज़िल हो जाता तो नौज़ बिल्लाह आपको पता है कि जैसे दूसरी किताबों में चेंजिंग हुई है, अंजील में हम देख सकते हैं। उसके अलावा जो यहूदियों की किताबें हैं उन्होंने अपने जो कवानीन असूल बना लिए, हर चीज़ उन्होंने अपने वक्त के मुताबिक जो है खुद डिसाइड कर ली। तो मेरे अल्लाह की शान है कि अल्लाह पाक हर चीज़ को बेहतर करने वाले हैं और हर चीज़ के बारे में बेहतर इल्म रखने वाले हैं, जानने वाले हैं। तो उस चीज़ की जो हर चीज़ की आपने जो डिटेल है वो डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन की है। और उम्मीद है आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और जो मेरे क्रिश्चियन भाई थे उन्होंने भी इस चीज़ का जो क्वेश्चन था उसका बहुत ही अच्छे तरीके से उनको जवाब मिला। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह पाक आपको सेहत दे, खुश रखे। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।